الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، میں سب سے پہلے اسلامی طریقے سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے غیبت میں اپنا وقت ضائع کرنے کا انجام۔ غیبت ایک عربک ورڈ ہے، غیبت غیب سے نکلا ہے، یعنی کہ کسی کے غائبانہ میں اس کی برائی کی جائے جو اس کے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غیبت کا ڈیفینیشن دیتے ہوئے اور اس کے بارے میں بتلاتے ہوئے آپ نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا بھائی جو چیز ناپسند کرتا ہے اس کو تم اس کے غائبانے میں ذکر کرتے ہو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا جو چیز اس آدمی کے اندر موجود ہے، جو برائی اس آدمی کے اندر موجود ہے، اسی کا تو ہم ذکر کر رہے ہیں، کیا یہ غیبت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ چیز جو تم نے ذکر کی ہے اگر اس شخص میں موجود نہیں ہے تب تو یہ بہتان ہے، تہمت ہے، جو اس سے بھی بڑی گناہ والی بات ہے۔ تو غیبت کا ڈیفینیشن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی روشنی میں جائز غیبت اور ناجائز غیبت کے فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ کے سامنے میں معلومات پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ مدنی صاحب آئیے ناظرین ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے غیبت سے متعلق۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ناظمہ شاہین بھونیسور سے کہتی ہوں۔ جی ناظمہ شاہین صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی چگلی کی معنی یہ ہے کہ جی کسی کے پیٹ پیچھے اس کی بری بھلی کہنا۔ جی جی اگر کسی شخص کی حقیقی عیب یا برائیاں اس کے غیر موجودگی میں بیان کیا جائے، جی جی جیسے کہ فلاں شخص سود کھاتا ہے یا شراب نوشی کرتا ہے، جی تو کیا یہ بھی چگلی کرنے کی مانند ہوگی؟ اچھا برائے کرم روشنی ڈالے۔ بہتر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں بھونیشور سے کال کیا۔ مدنی صاحب بہن کے سوال کا جواب عطا فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن نے سوال کیا ہے کہ چغل خوری غیبت، یعنی اس کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو یہ ہے کہ چغل خوری کا معنی کیا ہے، غیبت کا معنی کیا ہے۔ اب اگر غیبت کو ہم کہیں کہ ٹوٹلی ناجائز ہے، اسلام ایک بیلنس توازن والا مذہب ہے، وہ غیبت کی جائز شکلیں بھی اس نے بتلائی ہے، ناجائز شکلیں بھی اس نے بتلائی ہے۔ تو ایسے وقت پر بہن کے ذہن میں سوال آیا کہ جو آدمی شراب پیتا ہے یا برائی کرتا ہے، اس کی برائی اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو کیا غیبت ہے یا نہیں ہے؟ مختصر یہ غیبت کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹھ کے پیچھے برائی اگر آپ کرتے ہیں جو برائی اس کے اندر موجود ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس اس کی برائی بیان کی جائے۔ چغل خوری یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی جب آدمی چغل خوری کرتا ہے تو اس کے اندر غیبت خود بخود شامل ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی اس کے غائبانہ میں جا کر اس کی برائی کا ذکر کرتا ہے یا اس کی فتنے کی باتیں دوسرے تک پہنچاتا ہے کہ تمہارے بارے میں وہ ایسا کہہ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد چغل خور ایک آگے قدم بڑھتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا آدمی جو بات کہتا ہے پھر وہ لا کر ادھر لگاتا ہے، ادھر کی بات ادھر یا ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، یہ ہوئی چغل خوری۔ تہمت یہ ہے کہ جو چیز موجود نہیں ہے آپ اس کی برائی پیٹ پیچھے کرتے ہیں یا سامنے کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تہمت۔ تانا کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو آپ ابیوز کرتے ہیں، گراتے ہیں، اس کے نسل پر یا اس کے نسب پر آپ کوئی گالی کے پر کوئی جملہ آپ کستے ہیں، یہ ہوگا تانا۔ یہ کچھ بیسک فرق ہے۔ رہا یہ کہ غیبت کی چند جائز شکلیں بھی انشاءاللہ میں وہ بتلاؤں گا، لیکن اس کو مس یوز نہ کیا جائے۔ اور کب جائز ہے؟ بیسیکلی بنیادی طور پر یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے کہ اسلام اس وقت پر غیبت کی اجازت دیتا ہے جبکہ فساد کا خاتمہ جس سے ممکن ہو، لیکن ایسے غیبت کی اسلام اجازت نہیں دیتا جس کے اندر فساد کا کو بڑھاوا ملتا ہو۔ تو یہ بنیادی طور پر فرق پایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اپنے سیشن میں آگے بھی کہ بنیادی طور پر اور غیبت کی کیا کیا شکلیں ہیں انشاءاللہ۔ اب اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو ہیلو ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام محترم، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی آپ کا اسم گرامی؟ محمد خواجہ۔ جی خواجہ صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے مدنی صاحب میری آپ سے درخواست ہے اپنے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے گا، گونج رہی ہے آپ کے پیچھے ہماری آواز۔ جی ہاں، مدنی صاحب کو میری طرف سے سلام عرض کیجیے۔ وعلیکم السلام۔ مدنی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ لوگ جو کام کرتے ہیں اچھے برے کے لیے، اب ان کو روکا جائے، یعنی یا پیٹ پیچھے یا سامنے سے، یا ان کے بارے میں کوئی بھی یعنی کوئی چیز غلط ہے، جیسا کہ کوئی کام انہوں غلط کر رہے ہیں، ہم بولے وہ یہ کام نہیں کرنا، یہ چیز بری ہے، پھر انہوں کر رہے ہیں، پھر ہم کی دوسروں سے اگر بول کے وہ کام کو رکا ہے تو وہ کیا غلط ہو سکتا ہے کیا؟ یعنی کوئی چیز کا فیصلہ ہو گیا، اگر وہ فیصلے کے اندر ہم اس کو بولے کہ یہ فیصلہ ہو گیا بھائی اب یہ چیز غلط نہیں ہے، اب یہ چیز ہو گئی تو اس کو غلط ماننا یا اس کو اس کے بارے میں پہنچانا کیا غلط چیز ہے؟
अच्छा भाई, मैं समझ गया आपकी जो बात है, शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। मदनी साहब भाई यही बताना चाह रहे हैं, किसी को मुतनब्बा करना हो किसी चीज़ के बारे में, कोई काम अच्छा जो करना चाहिए था किसी को किसी ने नहीं किया, दूसरे से कह करके भाई ये काम नहीं कर रहा है, फलां शख्स को ये करना चाहिए था, ताकीद करवाना या बोलना, ये अमर है, क्या ये भी ग़ीबत के ज़ुमरे में शामिल होता है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है। तो मैं चाहूंगा कि ग़ीबत जो 6 जगहों पर जायज़ है, मैं बता देना चाहता हूं ताकि मसला क्लियर हो जाए। 6 जगहों पर ग़ीबत जायज़ है। रियाज़ सालिहीन में अल्लामा इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ अहादीस को सामने रखकर उन्होंने इन 6 ग़ीबतों के जो जायज़ किस्में हैं उसका उन्होंने जिक्र किया है। एक ये है कि अगर किसी आदमी का तारुफ देना है तो उसके अंदर कुछ बुराई ऐसी पाई जाती है कि अगर वो तारुफ ना हो तो मुआशरा खराब हो सकता है, या कोई आदमी मखसूस नुकसान में पड़ रहा है तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई इस आदमी से बचकर रहना, ये आदमी नुकसान पहुंचाएगा। तो उस आदमी की हद तक जाकर अगर आप कह रहे हैं तब तो सही है, लेकिन उसकी बुराई सब में करते फिर रहे हैं जबकि उसका कोई ताल्लुक है ही नहीं, ये तो फसाद हुआ, वो जायज नहीं है। दूसरी शक्ल ये है कि अगर किसी से रोकना चाहते हैं कि भाई अगर आप शादी का मसला आता है कि भाई फलां के पास जानते हैं कि वो आदमी बुरा है, कोई आपसे पूछता है कि लड़की का रिश्ता होता है लड़के का, तो ऐसे वक्त पर अगर कोई आपसे पूछताछ करता है तो कुछ बुराई देखते हैं अगर आप, तो आप क्लियर कर दीजिए कि उल्लूला है, लंगड़ा है, जो कुछ भी है बता सकते हैं, छुपाना जायज नहीं है। लेकिन यहां पर भी यही है कि रिश्ते की हद तक जो मुताल्लिकीन है उन्हीं के पास आप कहेंगे, सबसे कहते फिरेंगे, फिर ये भी जायज नहीं है। इसी तरीके से एक आदमी बुराई को टोकना चाहता है, तीसरी शक्ल ये है कि बुराई को टोकना चाहता है लेकिन डायरेक्ट टोकना उसके लिए मुश्किल है, तो ऐसे वक्त पर वो दोस्त के सहारे या किसी और का सहारा बनाकर टोकना चाहता है, तो ऐसे वक्त पर वो दोस्त को जब बताएगा कि आदमी में ये बुराई है मैं टोकना चाहता हूं, तो जाहिर बात है गायबाना में आप ग़ीबत कर रहे हैं, लेकिन मकसद आपका नेक है, वो ये कि बुराई से टोकना है। जब तक आप जिससे मदद ले रहे हैं सिर्फ उसी को बता रहे हैं, उसी से मदद ले रहे हैं, ग़ीबत कर रहे हैं ताकि उसकी इस्लाह की जाए, तब तो सही है। लेकिन आप 4 लोगों में बोलते फिर रहे हैं, होटलों में आम, तब तो ये गलत है। और इसी तरीके से अगर कोई आदमी मजलूम है, चौथी शक्ल ये है कि कोई आदमी मजलूम है और अपना दुखड़ा जाकर अदालत में पेश करता है और किसी की ग़ीबत करता है, जायज है। इस्लाम बहुत ही बैलेंस वाला मजहब है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल टोटली हराम है। और इसी तरीके से फतवा तलब करते वक्त मुफ्ती के पास जाते हैं, मुफ्ती साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि फला मेरा भाई ऐसा है, आप बताइए कि इसमें हमको क्या करना चाहिए। बज़ाहिर तो ग़ीबत हो रही है लेकिन ये मसला जायज है, मुफ्ती साहब से पूछना जायज है। यहाँ पर ग़ीबत भी अगरचे हो रही है क्योंकि मकसद ये कि इस्लाह की जा रही है, तो ये जायज शक्लें हैं ग़ीबत की। अगर आप तफसील से पढ़ना चाहते हैं तो रियाज़ सालिहीन का मुताला कीजिए। मकसद ये होना चाहिए ग़ीबत का कि उसके अंदर इस्लाह हो। लेकिन आजकल जो ग़ीबत हमारे पास चल रही है, जिस पर ये प्रोग्राम रखा गया है, वो है टाइम पास। 4 लोग जमा होते हैं, महफिलों को सजाते हैं और बस मकसद होता है किसी की बुराई कर दें, किसी की इज्जत गिरा दें और इसी तरीके से अपने आप को बढ़ाकर पेश करें। ये जो जिसके पीछे कोई मकासद नहीं है, सिर्फ बुराई बयान की जा रही है, उस टॉपिक पर गुफ्तगू हो रही है। तो इंशाल्लाह उसकी मदिम्मत में आज हम ये बयान रखे हुए सवालात और जवाबात का सिलसिला, इंशाल्लाह उस पर हम बयानात देंगे, जवाबात देंगे। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन, आपके SMS हमें मौसूल हो रहे हैं, फिर भी हम आपके SMS के मुश्ताक हैं, मुंतज़िर हैं। आपके बहरहाल SMS जो है हज और निकाह से और तलाक से मुताल्लिक आ रहे हैं, लेकिन हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं जो आज का उन्वान है इससे मुताल्लिक अपने SMS रवाना फरमाएं ताकि 2 ब 2 गुफ्तगू हो, आपका सवाल आए और जवाब इमीडिएटली आपको मिल जाए। तो नाज़रीन, आइए एक मुख्तसर से वक्फे के बाद ये सवालात का सिलसिला फिर जारी रखते हैं। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। इनका क्या सवाल है? हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, कौन और कहां से बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं बनारी से सुहेल अहमद उस्मानी बात कर रहा हूँ। जी उस्मानी साहब, बताइए क्या सवाल है? पहले मैं मौलाना को सलाम करना चाहूंगा और आपको। जी वालेकुम अस्सलाम। हज़रत, मेरा सवाल है जी कि अगर कोई शख्स की बुराइयां, कोई किसी शख्स के पास बुराइयां है, अगर उसके सामने ही हम उसकी बुराइयां बयान कर दिया तो बहुत अच्छी बात है ये तो, लेकिन कौन सुनना पसंद करेगा आपकी बात? नहीं, अगर हकीकत में सामने बयान कर दिए तो क्या होगा? अच्छा ठीक है, आपके जो सवाल है इससे मुताल्लिक जानते हैं मदनी साहब क्या कहते हैं। शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया उस्मानी साहब बेलारी से। जी मदनी साहब, भाई के सवाल का जवाब। अच्छी बात है, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है। अगर किसी शख्स के पास बुराई है तो ऐसे वक्त पर हमको क्या करना चाहिए, यानी अगर हम डायरेक्ट जाकर अगर कहें तो कहां तक इसकी गुंजाइश है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन एक दूसरे मोमिन के लिए, मुसलमान एक दूसरे मुसलमान के लिए, भाई के लिए आईने की तरह है। आईने की खुसूसियत अगर आप देखेंगे कि जब आईना के सामने आप ठहरते हैं तो ऐसे वक्त पर आईना बिल्कुल आपको बता देता है कि कहां पर धब्बा लगा हुआ है। नतीजे में आसानी के साथ आप अपनी सफाई कर लेते हैं, बाहर जाकर मजाक बनने से पहले आप अपने आप को साफ कर लेते हैं। इसी तरीके से आईने की तरह होना चाहिए। लेकिन आपने कभी आईने को नहीं देखा होगा कि अगर कोई सामने आ जाए तो आईना जो है ये कहते हुए हंसता हो कि अरे देखो तुम्हारे अंदर कैसी बुराई है। आईना इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाता, ना वो हंसता है, बल्कि खैर खाही के साथ बिल्कुल खुला साफ और शफाफ आईना बनकर सामने वाले को उसकी बुराई बयान कर देता है। नतीजे में एक आदमी कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करता है कि बुराई जान लेने के बाद मेरा भी फायदा है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, बुराई के बहाने सामने वाले को गिराना चाहते हैं। ये इस्लामी एतबार से जायज नहीं।
नसीहत के बहाने एक दूसरे को गिराना चाहते हैं, ये जायज नहीं। आप खैरखाई करें। और एक भी चीज, आईने की खुसूसियत ये है कि जैसे आईने के सामने से हट जाता है एक आदमी, अब दूसरा आता है, तो ऐसे वक्त पर आईना जो आदमी गुजर चुका है, जा चुका है, उसके बारे में अब नहीं बताता, अब आईना उसके लिए तैयार होता है जो सामने ठहरा हुआ है। लेकिन हमारे पास होता है कि उसके सामने बोलने के बाद फिर गायबाना में जाकर जिक्र करते हैं, मैंने टोका, समझा, फिर भी वो नहीं मानता, फला फला, इस तरह से फिर गिबत में पड़ जाते हैं। तीसरी और एक भी शक्ल आप आईने में देखेंगे, आईना टूटकर चिकनाचूर हो जाता है, उसके टुकड़े 10-12 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी खैरखाई का काम अंजाम देता है। इसी तरीके से अगर आपको अगरचे के सामने वाले से तकलीफ पहुंची है, तब भी आपका दिल इतना वसी होना चाहिए कि उसके बावजूद जब आप खैरखाई करने में आए तो कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आजकल ऐसा होता है कि एक आदमी खैरखाई के बहाने, नसीहत के बहाने गलत रहनुमाई भी करता है। नतीजे में होता है कि लोग एक दूसरे से बदजन हो चुके हैं और सामने बुराई सुनना पसंद नहीं करते। अगर हम वाकई आईने का किरदार अदा करेंगे तो यकीनन बहुत फायदे हैं। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। नाजरीन, आप हमें SMS रवाना कीजिएगा, इसके लिए टाइप कीजिएगा AAH स्पेस अपना सवाल, अपनी नेक तमन्नाएं और अपना नाम, अपने शहर का नाम, और इसे रवाना कीजिएगा 3690 पर या 600606 पर, और UAE के रिवर्स 4412 पर अपने SMS रवाना कर सकते हैं। तो नाजरीन, आइए और एक कॉलर से बात करते हैं इस प्रोग्राम में। हेलो 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 हेलो, गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है, लाइन पर कोई मौजूद था। मदनी साहब, ये बात तो तय है कि गिबत जायज़ भी है, नाजायज़ भी है, कुछ मकामात आपने बताए हैं, लेकिन गिबत की और क्या शक्लें हो सकती है, ये भी बताएं, वाज़ेह फरमाएं कि किस किस तरह से गिबत होती है। इंसान को उसका अंदाजा भी नहीं होता है कि वो गिबत कर रहा है, तो बराए करम इस पर रोशनी डालें। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। बहुत हमारे ऐसे भाई हैं जो गिबत, ये सारे बुराइयों से बचना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बहुत ही नीच और गिरी हुई हरकतें हैं, ये बदअखलाकियां हैं, लोग पसंद नहीं करते इन सब चीजों को, लेकिन बचना चाहते हैं। लेकिन पता नहीं चलता कि आखिर गिबत है क्या। गिबत की शक्लों में ये है कि आप किसी का चेहरा बनाते हैं या किसी की आवाज की नक्काली करते हैं, या आजकल जो कार्टून का जमाना चल रहा है, किसी की शक्ल को आप बिगाड़ कर कार्टून बनाते हैं और नतीजे में लोगों में मजाक बन जाता है, या इसी तरीके से किसी का आड़ा नाम रख देते हैं आप उसके जात पर या उसके कोई प्रोफेशनल पर, या उसके पास जो सलाहियतें हैं या उसकी जो बातें हैं या बात करने का अंदाज है, चलने का अंदाज है, इन सबको इमिटेट करना, नक्काली करना, और आजकल तो एक फन समझा जा रहा है लतीफे बनाना करना। तो जहां कहीं भी लतीफों में, गुफ्तगू में किसी की गिबत शामिल हो जाए, यकीनन वो बहुत बड़े गुनाह का मुर्तकिब है। तो ये सारी शक्लें ध्यान में रखनी चाहिए। और गिबत के बहुत सारे नुकसानात हैं जो जहन्नम में, खबर में होने वाले, इंशाल्लाह मैं उसको भी बताऊंगा अभी इंशाल्लाह। शुक्रिया मदनी साहब, और एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में और जानते हैं कि सवाल क्या है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल व करम है जी हम मोहतरम। खैरियत से हैं, आप खैरियत हैं? जी अल्लाह का एहसान है। जी अल्लाह का फजल व करम है। जी। मैं आपसे एक मसला पूछना चाहता हूँ जी जी बताइए। कि जो मासूम जी। हैं उन पर तोहमतें लगाए जाते हैं जी जी और वो अगर उसके अंदर वो नहीं रहते, जी। ऐसे लोगों को, हाँ, ऐसे लोगों पर तोहमतें लगाकर उन पर इल्जामात लगाए जाते हैं। जी, जी। शरीयत ऐसे लोगों को क्या सजा देती है? अच्छा जी, मैं गलत ना हूं तो आप मालेगांव से बोल रहे हैं, लेकिन आपका नाम मुझे याद नहीं है। जी, भाई ने कॉल किया, हमारे रेगुलर कॉलर हैं, तो जो तोहमतें या बहतान लगाने की जो मजम्मत आई है उसको वाज़ेह फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में गिबत और तोहमत का जिक्र बेशुमार जगहों पर किया है। एक सूरत मुकम्मल सूरह हुमज़ा नाज़िल की है, सूरा नंबर 104, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, सूरह कलम सूरा नंबर 68 आयत नंबर 10, हम्माज़िम मश्शाइन बिनमीम, चुगलखोरी करने वाले, गिबत करने वालों को। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह हुजरात सूरा नंबर 49 के आयत नंबर 12 के अंदर, और तोहमत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 के आयत नंबर 58 के अंदर, और सूरह नूर मुकम्मल एक सूरत जो ऐसी बुराइयों पर मुश्तमिल है जिसको दूर करने के लिए बेहतरीन क़वानीन भी नाजिल किए हैं। सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 4 के अंदर कहा कि वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल मुमिनातिल गाफिलाति अल मुमिनाति बिगैरि मक्तसबू फ़क़द इहतमलू बुहतान व इस्मम मुबीना, कि जो आदमी को तोहमत डालते हैं, खासतौर से मोमिन है, गाफिल है, नेक है, साले है, ऐसों को अगर कोई तोहमत डालेगा उसने बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब किया है। और इस्लाम दूसरे मजहबों के मुकाबले में अपनी खुसूसियत रखता है, सिर्फ बुराई बयान नहीं करता बल्कि उस बुराई के खात्मे के लिए ऐसे उसूल देता है। लिहाजा सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 4 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी तोहमत और बहतान डालता है फिर उसके बाद गवाही पेश नहीं करता, जो मतलूब गवाह है उतने गवाह नहीं लाता, तो ऐसे वक्त पर शरीयत ये कहती है कि उसको कोड़े मारा जाए। तो जिस किस्म की तोहमत रहेगी उसके हिसाब से काजी फैसला कर सकता है। सबसे बड़ी तोहमत जिना की तोहमत होती है, लिहाजा उसके लिए बहुत ही सख्त सजाएं नाजिल की, कहा कि 80 कोड़े मारे जाएं। तो तोहमत की बहुत बड़ी सजा है, बचना चाहिए। जो लोग गिबत में मुब्तला हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता तोहमत में मुब्तला हो जाते हैं। शुक्रिया मदरी साहब, आइए एक SMS को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। लिखते हैं हाकिम महाराष्ट्र से, पॉलिटिक्स में किसी को ब्लेम करना जायज है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर सवाल करते हैं बहुत सारे भाई के सियासतदान
या पॉलिटिक्स के दौरान, तो ऐसे वक्त पर होता यह है कि लोग एक दूसरे की बुराई बयान करते हैं और मकसद ये होता है कि ऐसे वक्त पर ताकि अपने आप को पेश किया जाए। इस्लामी एतबार से जहां कहीं पर भी आप बुराई बयान कर रहे हैं, अगर उसका मकसद ये है कि मासूमों को बतलाया जाए कि तुम्हारे साथ ये नुकसान हो रहा है, और जहां पर आप रहते हैं, जिस मुल्क में आप रहते हैं, वहां की कानून की खिलाफ वर्जी भी नहीं हो रही हो, वहां के कानून की खिलाफ वर्जी भी नहीं हो रही हो, और साथ में आप वो तरीका इख्तियार करते हैं जो शरीयत से नहीं टकराता, और मासूमों को ये बात पता चल जाती है, इनोसेंट्स को, कि उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है, तो यकीनन जिस मुल्क में आप रहते हैं वहां के कानून का पालन करते हुए और शरीयत का ख्याल करते हुए, यानी इससे कॉन्ट्राडिक्ट ना होते हुए, अपने आप को इसके खिलाफ ना ले जाते हुए, अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो यकीनन उसमें फायदा है, उसमें मासूमों को नुकसान से बचाने का एक बेहतरीन अमल भी है। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। शुक्रिया मदनी साहब। आइए और एक कॉलर को शामिल करते हैं नाजरीन, जानते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बताइए अपना जी, सवाल। आवाज तुम्हारी। जी, अपने टीवी हेलो। की आवाज कम कर दीजिएगा, जी अपने टीवी की आवाज बिल्कुल म्यूट कर दीजिए। हेलो जी हेलो, हेलो आपकी आवाज आ रही है, बताइए क्या सवाल है। जी, मुहर्रम पे ताजिया बनाना और शरबत पिलाना हजरत इमाम हुसैन के नाम से, ये कैसे है? जी देखिए, आज का उन्वान हमारा गिबत से मुताल्लिक है। अगर आप गिबत से मुताल्लिक कोई सवाल करते हैं तो बताइए, जो सवाल आप करना हो आइंदा टॉपिक जब रहेगा तब सवाल कीजिएगा। जी बताइए। जी हेलो जी जी बताइए। हाँ, मुहर्रम पे ताजिया बनाना हजरत इमाम हुसैन के नाम से, शरबत पिलाना और ये खाना खिलाना, ये कैसा है? देखिए, आज हमारा टॉपिक गिबत से मुताल्लिक है। आपके पास अगर गिबत से मुताल्लिक कोई सवाल पूछना हो तो आप बताइए, इस सवाल को हम आइंदा कभी शामिल करेंगे किसी उन्वान के तहत। हेलो, गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई, बहन कोई दूसरा सवाल कर रही थी, लेकिन हम एक एसएमएस को शामिल कर लेते हैं इस प्रोग्राम में। लिखते हैं हुसाम हैदराबाद से, अस्सलाम वालेकुम। ऐसी कौन सी आयत है जिसमें गिबत का जिक्र किया गया है, और हदीस का भी कोई हवाला बयान फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैंने हवाला दिया है सूरह हुमज़ा, मुकम्मल एक सूरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाज़िल की है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, के गिबत करने वाले, ताना देने वाले, ऐब लगाने वाले, सारे इस आयत के अंदर आ गए हैं। सूरह हुमज़ा कुरान मजीद का 104 नंबर वाली ये सूरत है, और सूरह कलम सूरह नंबर 68 की आयत नंबर 10 और 11 के अंदर, सूरह मुद्दस्सिर सूरह नंबर 74 की आयत नंबर 45 खास तौर से जिक्र की जा सकती है इसके अंदर भी। और खास तौर से जो क्लियर स्टेटमेंट आया, वला यग़्तब बअदुकुम बाज़ा, कि तुमको चाहिए कि गिबत हरगिज़ ना करें, हराम है, सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 12 के अंदर। और अहादीस की किताबों में किताबुल अदब, अल अदबुल मुफरद, अबू दाऊद के अंदर, तिरमिजी, इब्ने माजा, सही बुखारी, ये सारी किताबों के अंदर अल किताबुल बिर्रि वस्सला, नेकी के काम, अदब का जो किताब है, चैप्टर है, इन सब के अंदर ये अहादीस आपको मिलेंगे। रियाज़ुस सालिहीन खास तौर से अखलाकियात को सुधारने के लिए बहुत सारी इसके अंदर अहादीस ऑथेंटिक है और मशहूर किताब है। इस किताब का घर में मुताला कीजिए, इंशाअल्लाह फायदा होगा। शुक्रिया मदनी साहब। नाजरीन, आपके एसएमएस हमें मौसूल हो रहे हैं, और भी आपके मजीद एसएमएस आप रवाना करें, लेकिन आप एसएमएस सिर्फ और सिर्फ आज के उन्वान से मुताल्लिक रवाना फरमाएं, ताकि हम आपके एसएमएस को इस प्रोग्राम में शामिल कर सकें। तो नाजरीन, आइए चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ, इस उम्मीद के साथ कि हम लौट रहे हैं, आप कहीं नहीं जाएं। नाजरीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम आप और हम में नाजरीन, आज का उन्वान गिबत में अपना वक्त ज़ाय करने का अंजाम से मुताल्लिक है। तो नाज़रीन, आइए और जानते हैं मदनी साहब से। मदनी साहब, आए दिन लोग महफिलों में अपना वक्त बर्बाद करते हैं और गिबतों में अपना वक्त ज़ाय करते हैं, और इसकी जो वईदें, इसकी जो दर्दनाक अजाब की खबर जो अल्लाह ताला ने कुरान में दी है, खबर के अजाब, जहन्नम का अजाब और दुनियावी आफात से आगाह फरमाया है, वो क्या है, जरा हमारे भी सामाईन को, नाजरीन को बता दें। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। गिबत के जो नुकसानात हैं दुनिया में, कब्र में और इसी तरीके से जहन्नम में, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे तरीके से वाज़े किया है। कहा वला तग़ताबू, कि तुम गिबत मत करो, वला तत्तबिउ औरातल मुस्लिमीन, मुसलमानों के बुराइयों को झांक झांक कर, बालों में आदत होती है झांकना, मालूमात करना, जासूसी करना, तोह में लगना, पीछे लगना, फिर उसके बाद बुराई बयान करना, ये सब अच्छी आते नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई किसी भी मुसलमान के पीछे लगेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उसका पीछा उठाएगा, और वो आदमी अगर दूसरे मुसलमान को नुकसान पहुंचाएगा और भरे बाजार में किसी की, जैसे कहते हैं, इज्जत नीलाम कर देगा, इज्जत गंवाएगा, अल्लाह ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस आदमी को नहीं छोड़ेंगे जब तक उसकी इज्जत भी सरे बाजार नीलाम ना हो जाए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास से गुजर रहे थे, कहा, दो खबरें थी, इन्नहुमा युअद्दबानी वमा युअद्दबानी फी कबीर, इन दोनों को कब्र का अजाब हो रहा है, और कोई बड़ी चीज में नहीं, मामूली देखने में, जिसको तुम मामूली समझते हो, छोटी छोटी चीजों में अजाब कब्र हो रहा है, क्योंकि ये दोनों गिबत किया करते थे। तसव्वुर कीजिए कि कब्र के अंदर अजाब हो रहा है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात में मुझे बतलाया गया कि लोग अपने जबड़ों को फाड़ रहे हैं और अपने छातियों को सलाखों के जरिए से खून बहा रहे हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन लोग हैं? कहा कि ये वो लोग हैं जो गिबत करते थे, और कालेह कहते हैं
کہ होठ को नीचे से फाड़कर गुद्दी पर ले जाए और ऊपर से फाड़कर गुद्दी पर ले जाए। ये नाजुक जिस्म के जो हिस्से हैं, इन नाजुक हिस्सों को सलाखों के जरिए से फाड़ा जाएगा। जो गीबत करेंगे उनका ये अंजाम होगा और जहन्नम में बहुत दर्दनाक सजाएं उनके लिए। इतनी सख्त वईदे और हराम काम होने के बावजूद भी लोग इस पर अड़े हुए हैं और अपने नामे अमल को बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह बचाए ऐसी बुरी बुराई से। नाज़रीन, आइए और एक कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मोहतरम, कौन और कहाँ से बोल रहे जी। हैं? मेरा नाम है मोहम्मद कामिल सईद, मैं कलकत्ते से बोल रहा हूँ। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल, पहले मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि मैं पहली बार बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मुबारक, और, आपको कॉल मिल गई है और पहली बार आपकी आवाज कोशिश के बाद मतलब कॉल लग गया है। जी जी, और मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, बहुत अच्छा काम चला रहे हैं, इसमें बहुत ही ये है। आमीन। जी मेरा सवाल ये है मुफ्ती साहब से जी। कि अगर मेरे कुछ दोस्तों मुझे मालूम हो गया कि वो मेरा गीबत कर रहे हैं या मेरे पीठ पीछे चुगली कर रहे जी। हैं, तो मेरा क्या अमल होना चाहिए, मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए? अगर मुझे मालूम हो गया कि वो मेरे पीछे पीठ पीछे चुगली कर रहे हैं, जी, क्या जी। मुझे माफ कर देना चाहिए उन्हें कि क्या, या उनके लिए मेरा क्या करना चाहिए? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ उसके लिए। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया भाई, आपने अच्छा सवाल किया है। मदनी साहब, भाई ने जो सवाल किया इसका जवाब बताएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने अब ये सवाल किया है कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि कोई गीबत कर रहा था, ऐसे ऊपर मेरा रद्द अमल या रिएक्शन क्या होना चाहिए? क्या मुझे माफ कर देना चाहिए? यकीनन माफी की बड़ी फजीलत है। सूरह शूरा के अगर आयत पढ़ेंगे, फअज्रुहु अलल्लाह फमन अफा व अस्लह फअज्रुहु अलल्लाह। कोई भी बंदा अमल करता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, जरूरी नहीं एक आदमी को यकीन नहीं हो सकता कि उसका अमल कबूल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक अमल ऐसा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में कहा कि वो अमल कबूल होगा ही, वो है माफी का अमल। किसी को माफ कर देना, चलो दरगुजर कर देना। कि जो आदमी भी माफी का रास्ता अपनाएगा, अल्लाह पर वाजिब है कि अल्लाह स्वतः उसको अजर देकर रहेंगे। लेकिन अगर आप माफ कर देंगे तो इसमें फायदा यह है कि आप अकेले बच गए जहन्नम से और आप अजर कमा लिए और जन्नत में चले गए। लेकिन इस्लाम तो ये चाहता है कि दूसरों को भी जहन्नम से बचाएं। तो ऐसे वक्त पर जिसके बारे में आपको मालूम हो कि ये आदमी गीबत कर रहा है, तो कभी आप टाइम निकाल कर कहे कि मुझे इत्तला मिल चुकी है, लेकिन मैं कोई उसका बुरा नहीं, मैं तुमको माफ करता हूं, लेकिन आपकी आदत अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें आपका नुकसान है। कब्र का अदाब सुनाइए, जहन्नम का अदाब सुनाइए, उसको भी आप बचाइए, इंशाल्लाह फायदा ज्यादा रहेगा। साहब, जो आमतौर पर जो दोस्त होगा वो चुगली करेगा नहीं और गिबत करेगा नहीं, अब जो दोस्त नहीं होगा वही ये काम करेगा और उसे हम माफ कर दें और उससे अगर हमको नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए क्या? इसी वजह से मैंने कहा कि माफ कर देंगे अगर आप और उस आदमी को छोड़ देंगे उसी बुराई में, तो उसके नुकसान फैलते रहेंगे। तो उसके बजाय आप माफ तो कर दें, यकीन बहुत अच्छा, हमें भी तो नुकसान पहुंचा सकता है वो जिसने चुगली की है। बिल्कुल, तो आप उस तक पहुंचे और उसके बाद उसको आप नसीहत करें, अल्लाह का खौफ दिलाएं। तो इस तरीके से माफी के जरिए से भी आपने सवाब कमाया, नसीहत के जरिए से भी आपने सवाब कमाया। और शक्ल यह है कि जब अगर आप देखें कि एक आदमी उसके बावजूद नहीं रुकता, तो फिर आखिरी एक्शन लेना ही पड़ेगा। जो भी शक्ल हो सकती है, जो कानून आपको इजाजत देता है, वो रास्ता आप अपना सकते हैं। जी शुक्रिया मदनी साहब। नाजरीन, आइए और एक SMS को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। लिखते हैं MS बेग, वारंगल, आंध्र प्रदेश से, अगर जाने अनजाने में किसी की गीबत हो जाए तो इसकी क्या सजा बताई गई है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाने अनजाने में गीबत हो चुकी है तो उसकी क्या सजा बतलाई गई है? तो जाहिर बात है, एक आदमी को अगर मालूम नहीं था तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसका मामला अल्लाह के हवाले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह माफ कर सकते हैं। वाकई अगर वो शख्स नहीं जानता था, लेकिन एक मरतबा ऐसा भी सवाल हो सकता है कि बात चीजें हैं जिसको आप ये नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी जहर खा ले और कहे कि मैंने अनजाने में जहर खा लिया है, तो ऐसे वक्त पर जहर को तो कुछ मालूम नहीं है, जहर को बस ये मालूम है कि जहर जैसे ही पेट में जाए बस नुकसान पहुंचाएगा। तो बात चीजें होती है अनजाने में भी नुकसान पहुंचाती है, तो उसका मामला अल्लाह के हवाले है। उसको चाहिए कि तौबा करना चाहिए और जो सजा बतलाई गई है मैंने आपको सजा बतला दी है। और एक भी हदीस जो खास तौर से उन लोगों के लिए है जो कहते हैं हम तो गीबत नहीं करते लेकिन गीबत सुनते हैं। बाद लोग गीबत सुनने की आदत होती है, औरतों में बहुत ज्यादा आदत होती है, मर्दों में भी ये आयतें सराहत करती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी किसी की गीबत हो रही है और डिफेंस नहीं करता, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उस आदमी को एक ऐसी जगह पर जहां पर वो चाहेगा कि मेरा फला काम बन जाए, मेरा फला काम बन जाए। एक आदमी गीबत करता है या गीबत सुनता है, उन दोनों की सजा यह है कि एक आदमी चाहता है कि उसका फला काम बन जाए, एक मखसूस जगह पर कोई काम उसका अटका हुआ है, वो चाहता है कि काश के कोई रेफरेंस दे दे, कोई शफात कर दे, सिफारिश कर दे तो मेरा काम बन जाएगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके काम को अटका देंगे। जो गीबत करता है उसकी सजा ये तबरानी में रिवायत है जिसकी सनद बिल्कुल ऑथेंटिक है। और एक आदमी गीबत नहीं करता और इसी तरीके से गीबत करने वाले का साथ भी नहीं देता, जहां कहीं गीबत हो रही फौरन कहता है गीबत छोड़ो, गंदी आदत है, मैं इसका साथ नहीं दे सकता। तो उसकी फजीलत बताई कि जहां कहीं भी उसका काम अटका हुआ रहेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस अटके हुए काम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानी करेंगे, नतीजे में उसकी रुकावटें खत्म हो जाएंगी। इतनी बड़ी फजीलत है गीबत का साथ ना देने की। तो इस तरीके से जो अनजाने में जाने तौर पर गीबत हो चुकी हो, तौबा करे और नए सिरे से लाइफ शुरू करे, अच्छी लाइफ, साले मुआशरा, मोहब्बत वाला मुआशरा। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन, आइए और एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। जी मैं सैयद अरशद यमनी रायचूर से बात कर रहा हूँ, अंदरून किले से। जी मोहतरम, क्या सवाल है आपका?
हाँ हजरत हम तो जिंदा लोगों के लिए आजकल गीबत करते हैं जी और आजकल लोग तो जो मरहूम मैन रहते हैं, जो मर गए होते हैं, जी जी तो उनके बारे में गीबत करते हैं। उनके लिए अगर कर दी भी हो तो उनके लिए माफी का जरिया क्या है? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें कॉल किया। मदनी साहब भाई ने जो सवाल किया है, जो जिंदा लोगों की तो गीबत हो ही जाती है, लेकिन मरहूमीन के ताल्लुक से भी लोग गैर गलत कहते हैं, और उसकी माफी का जरिया क्या हो सकता है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई के सवाल में एक और एक भी सवाल मैं ऐड कर देता हूँ। बाद लोग ये समझते हैं कि काफिर की गीबत करना जायज है, और इसी तरीके से बाद लोग ये समझते हैं कि जो आदमी मर चुका है उसकी भी गीबत कर लेते हैं, ये अक्सर होता है। इसी तरीके से बाद लोग बच्चों की गीबत करते हैं, कहते हैं बच्चा बालिग ही नहीं हुआ तो उसके पर तो गुनाह नहीं होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हुए कहा, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के आयत नंबर 130 का मुताला कीजिए अगर आप, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम। वो कौम है जो गुजर चुकी है, उनके जाती बुराइयां आए बयान करने का आपको नुकसान कुछ फायदा होने वाला नहीं है। व लकुम मा कसबतुम, ये सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। एक छन्नी जो होती है जहां से आटा छाना जाता है, उसके अंदर बहुत सारे सुराख होते हैं, लेकिन अगर वो ये कहे सुई को देखकर कि ऐ सुई तेरे अंदर सुराख है, तो अब सुई पलटा कर कहेगी कि खुद अपने आप को देख ले, तेरे पास तो सुराख ही सुराख है। तो लोग दूसरों का तिनका देखते हैं और उनको अपना शहतीर नजर नहीं आता। एक आदमी अगर अपने बारे में सोचेगा तो देखेगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो उसको खुद अभी इस्लाह करनी बाकी है। तो लिहाजा लोगों को अपनी फिक्र ज्यादा करनी चाहिए। जो जिनका इंतकाल हो चुका हो उनकी बुराई बयान करना बहुत बड़े गुनाह वाली बात है, और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग मर चुके हैं उनकी बुराई बयान मत करो, बल्कि कोई से करना चाहिए कि जितना हो सके ऐबों पर पर्दा डाला जाए और उसको नसीहत करें आप आहिस्ता से, जो अंदाज होता है, क्योंकि नसीहत है ना कि फजीहत, किसी का मजाक उड़ाना नहीं होता। और रहा एक काफिर की गिबत, अब्दुल्लाह बिन वहब रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद, उनसे पूछा गया कि क्या काफिर की गिबत, उसके जाती ऐबों के बारे में उसकी गिबत करना जायज है? तो कहा क्या काफिर इंसान नहीं होता, क्या काफिर इंसान नहीं होता? फिर उसके बाद उन्होंने कहा, कुरान मजीद के एक आयत कोट करते हैं, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, ऐ मुसलमानों, ऐ इंसानों, तुम लोगों से अच्छी बात कहो। तो काफिर भी एक इंसान है, लिहाजा उसके भी जात की बुराइयों बयान नहीं करनी चाहिए। और रहा बच्चा अगरचे बालिग नहीं है, लेकिन तुम तो बालिग हो, लिहाजा बच्चे की भी गिबत नहीं कर सकते। शुक्रिया मदनी साहब। आइए और एक एसएमएस को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। लिखते हैं अजीज सिकंदराबाद से, अगर हम बातचीत के दरमियान किसी की बुराई अगर अहम बातचीत के दरमियान किसी की बुराई बयान हो जाए तो क्या ये गीबत है? जैसे कि शादी ब्याह का मामला हो, या आपसी ताल्लुकात का मामला हो, या और कोई लेन देन की बात हो, किसी तरह के सौदे की बात हो, इसमें किसी की बुराई करनी ही पड़ती है, और दरअकीकत वो इंसान में बुराई मौजूद भी होती है, फिर भी हम अगर बात करते हैं तो क्या वो गीबत के जुमरे में आएगी? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैंने कहा कि गीबत की जायज शक्लें भी है, लेकिन यहां पर जहन में आपको क्लियर रहना चाहिए कि आपस में गुफ्तगू हो रही है और ऐसे वक्त पर उसका जिक्र आते ही उसके ऐबों के बारे में गुफ्तगू हो रही है, जबकि उसका कुछ फायदा नहीं है। ना मकसद ये है कि उसकी इस्लाह करना है, ना मकसद ये है कि किसी को बचाना है उसकी बुराई से, बस मकसद है कि टाइम पास करना है, बस मकसद ये है कि उसका इज्जत गिरा देना, तब तो ये जायज नहीं। लेकिन अगर मकसद ये है, जरूरत पड़ जाए अगर कि कोई डीलिंग हो रही है, तो ऐसे वक्त पर फला आदमी नहीं, वो आदमी मुनासिब नहीं है हमारे इस डीलिंग के लिए, तो जाहिर बात है तो ऐसे वक्त पर बुराई करते हैं। मकसद आपका क्लियर है ताकि किसी को नुकसान से आप बचाएं, जायज है। इसी तरीके से तारुफ देते हैं आप शादी ब्याह के मौके पर, इसी तरीके से रावियों के बारे में भी कहा कि ज़ईफ है, उनका हाफिजा खराब हो गया था, क्यों? ताकि हदीसों की हिफाजत की जाए। एक बड़े फायदे को हासिल करने के लिए बाज़ औक़ात मखसूस मुतअल्लिक़ जो डिपार्टमेंट होता है या मुतअल्लिक़ जो अफराद होते हैं, जो लोग होते हैं, उन हल्के के लिए, उस हल्के के लिए अगर आप जाकर बुराई कर देते, बताते हैं भाई आदमी से बचो, तब तो फायदामंद है। लेकिन होता यह है कि लोग सरे बाजार जहां बैठे हर एक के दरमियान, जिससे उसका कुछ ताल्लुक ही नहीं होता, बुराई करते हैं। ये बुराई गीबत वाली है, जिसके अंदर फसाद फैलता है, मुआशरा नफरत के बीज आप मुआशरे में पेरते हैं, ये गलत है। उसका कफारा भी मैं इंशाल्लाह भी बताऊंगा। जो लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं, तौबा करना चाहते हैं, उसका कफारा भी इंशाल्लाह बताऊंगा। शुक्रिया मदनी साहब। और एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मोहम्मद गियासुद्दीन खान बोल रहा हूँ, मुंबई बुमरा से। जी जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये था कि हम लोग किसी का घर में जाना आना है जी, और वहाँ उसके बारे में बहुत से चीज हम लोग बुराई जानते हैं। जी जी तो हम लोग घर पे आने के बाद कभी मियाँ बीवी आपस में बात करते हैं कि फलाना शख्स ऐसा है वैसा है, उसका मेरे बुराई है। जी, तो लेकिन आप मियाँ बीवी के अंदर वो बात करना, उसका चुगली करना होता है या नहीं? है बदनी साहब से मुझे पूछना था। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। आपके सवाल का जवाब यकीनन हम देंगे, आप प्रोग्राम देखते रहिए। नाज़रीन, आइए चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब, फिर इसके बाद भाई ने जो कॉल किया था इसका जवाब देते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्फे के बाद इस आखिरी सेगमेंट में फिर से आपका खैर मकदम है। अभी भाई ने मुंबई से जो कॉल किया था, इसका जवाब मदनी साहब से जानते हैं। क्या कहते हैं मदनी साहब भाई के सवाल से मुताल्लिक़? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने भी ये सवाल किया कि कभी हम शौहर और बीवी जाते हैं किसी घर के पास, वहां पर बुराइयां देखते हैं, फिर वापस लौटते हैं और आपस में गुफ्तगू करते हैं, तो ये गीबत हुई या नहीं हुई? जहन में रख लीजिए, रायबाना में जो गुफ्तगू हो रही है उसका मकसद क्या है। मिसाल के तौर पर अगर मकसद ये है कि वहां पर आप पर जुल्म हुआ है, अगर कुछ तकलीफ हुई है और आपस में आकर आप डिस्कस करते हैं कि मुझ पर ये तकलीफ हुई, किस तरीके से हम इसका इजाला करें, फला फला, ये अगर टॉपिक निकल सकता है। या ये टॉपिक कि आप बीवी को बताना चाहते हैं कि देखो फला जो जुमले थे वो नुकसानदेह थे,
जो वहां पर कहेगा कहीं ऐसा ना हो कि तुम असर में आ जाओ, या बीवी शौहर को कहती है कि तुम उसका असर मत लो खैर खाई के तौर पर। अगर ये शक्लें हैं, अगर ये 2 बातें हैं तो दार बातें जायज है, क्योंकि 6 जो बातें मैंने बतलाई कि उसके अंदर ये है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 148, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 68 के अंदर ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। किसी पर अगर जुल्म हुआ है तो वो जाकर अगर कहता है तसल्ली के लिए कहीं पर या मखसूस डिपार्टमेंट पर जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाता है मैं चोर की ग़ीबत नहीं करूंगा, तब तो चोर कैसे पकड़ा जाएगा फिर? तो ऐसे वक्त पर इसी तरह अदालत में आपको गवाही देनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से जुल्म के खात्मे के लिए अगर ग़ीबत होती है या इसी तरह खैरखाई के लिए होती है, बचाना मकसद होता है किसी को नुकसान से, तो ये जायज है। लेकिन अगर आप सिर्फ बुराई, बस बुराई बराए बुराई जिसको आप कहते हैं बयान करना चाहते हैं तो टाइम वेस्ट करना हुआ, और ये बुज़दिलों की अलामत है, अपने वकार को गिराने की अलामत है। और जो लोग गायबाना में ग़ीबत करते हैं हसद, जलन और नाकामी की अलामत है, गोया के हार मान लेने के बराबर है। और जो लोग इस राह पर चल पड़ते हैं उनके अंदर कई बुराइयां जन्म लेते हैं, क्योंकि बुराई बुराई को जन्म देती है। मदनी साहब और एक SMS को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, लिखते हैं अबुल हसन, हाउ टू डील विद पेरेंट्स इफ दे आर इन्वॉल्व्ड इन ग़ीबत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इसके अंदर मैं 2 पहलू भी बताता हूं कि आप किसी को देख रहे हैं कि वो ग़ीबत की काफी आदत में पड़ा हुआ है और उसको वो बाद लोग हुनर समझते हैं और ग़ीबत करने को बाद लोग फैशन समझते हैं, और बाद लोग तो नौजुबिल्लाह इसके जरिए से कमा भी रहे हैं। और नतीजे में अगर कोई देखे बड़ों को या अतराफ में कैसे नसीहत करे, और इसी तरीके से उसका कफारा क्या है, 2 पहलू पर बताता हूं। तो अगर आप किसी को देखें, थोपने के 3 तरीके होते हैं। या तो आपके पास ताकत है तो आप अपने ताकत के जरिए से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बच्चा है तो आप उसको डांट डपट सकते हैं। अब बड़े लोग हैं तो ऐसे वक्त पर आप अपने जुबान अच्छे तरह हिकमत और मौइज़त, हिकमत कहते हैं कि ऐसी बात जो अकल को अपील कर जाए, वज़ो शही फी महली, कि जिस अंदाज में अपनाना है वो वक्त का लिहाज करते हुए, टाइम का, तरीके का लिहाज करते बता दे। मौइज़त कहते हैं नरम करने वाली बातें, कुछ डराएं धमकाएं, आखिरत का खौफ दिलाएं तो हो सकता है कि मान जाए, लेकिन अच्छे तरीके से, अच्छे उसलूब में। या नहीं तो कम से कम यह है कि आप दिल में बुरा जाने। उसका कफ़ारा यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा करे, जिसकी आपने ग़ीबत की है उससे जाकर माफी मांग सकते हैं, जिससे फायदा है तो माफी मांग लीजिए। लेकिन आमतौर पर माफी मांगने से और फसाद होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे वक्त पर गायबाना में उसके लिए इस्तिग़फ़ार कीजिए, जिसकी भी आपने ग़ीबत की है उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको माफ कर दीजिए। और एक मुस्तहब ग़ीबत है जिसको लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। तिरमिज़ी शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई अपने भाई की गायबाना में भाई के लिए दुआ करेगा तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले तू इसको दे, बाद में उसको दे। तो गायबाना में जो ये ग़ीबत है इसको तो कोई नहीं कर रहा है, बल्कि बुराई बयान कर रहे हैं। हमको चाहिए कि एक मुसलमान भाई के लिए गायबाना में दुआ करे, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों की हिदायत के लिए भी गायबाना में दुआएं करते थे। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन और एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है। मदनी साहब से हम और बात कर सकते हैं। मदनी साहब, जो ग़ीबत की मुख्तलिफ शक्लें हैं, आदमी चाहते हुए न चाहते हुए इसको कर गुजरता है, इसका इर्तिकाब कर ही देता है। तो क्या शक्लें हैं ग़ीबत की, वो भी बताएं, और इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताएं, कुछ टिप्स बताएं, जिससे हम इस बुराई को करने से बाज रहें। ग़ीबत की शक्लें बहुत सारी आप बता सकते हैं। उसमें से एक ये है कि एक आदमी कहता तो नहीं लेकिन हमेशा दिल में बुराई रख के रहता है। बालों में ये भी आदत होती है, कहते नहीं लेकिन हमेशा दिल में या किसी के बारे में गलतफहमी में है, बदजनी में है, या दिल में बुराई उसके पास हमेशा रखते हैं, मौका मिलते ही कह दे, तो ये भी सही नहीं है। शक्लें ये है कि चेहरे बनाना, मजाक उड़ाना, और इसी तरीके से या सामने वाले को भड़काकर खुद सुनना, ये सारी वो शक्लें हैं। रहा इसके टिप्स कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ, कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला पकड़ करने वाले हैं, कोई छूटने वाला, जब दफ्तर खुले हुए रहेंगे। और ग़ीबत जितना तेजी के साथ आमाल को खराब कर देता है, और ग़ीबत की वजह से एक इंसान बुराइयों में आसानी के साथ फंसता चला जाता है। और ग़ीबत करते वक्त एक आदमी कम से कम एक मता सोच ले कि खुद उसके अंदर कई बुराइयां मौजूद है, और इसी तरीके से ग़ीबत बुज़दिली की अलामत है, ये भी सोच ले। और इसी तरीके से ग़ीबत करने से एक आदमी का वक़ार गुम हो जाता है। और एक पॉइंट ध्यान में रखिए, जो आदमी आपके पास सामने बैठकर दूसरों की ग़ीबत कर रहा है, ध्यान में रख लीजिए, वो आदमी कभी आपका वफादार नहीं हो सकता। जब वो दूसरों की ग़ीबत आपके सामने कर सकता है, आपकी भी ग़ीबत करके दूसरे पे कर सकता है। लिहाजा किसी भी ग़ीबत करने वाले को आप अपने महफिल में मत बिठाइए, ये आदमी खतरनाक है, ये आदमी धोखा देगा, ये आदमी कभी भी आपके खिलाफ होगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बात नाज़रीन में ख़वातीन से माज़रत चाहते हुए मैं ये सवाल मदनी साहब से करता हूं कि आमतौर पर मद हज़ार से ज़्यादा ख़वातीन इस बुराई में न चाहते हुए भी मुलविस हो जाती हैं। वो चाहे सास बहू की बातें हो, या बहू बहू की बातें हो, या बहन की ननद की बातें हो, ये इस तरह से जो ख़वातीन के जो ताल्लुकात हैं, मुख्तलिफ रिश्ते हैं, इनकी जो चश्मकें आपस में होती हैं, इसके बारे में वो गुफ्तगू करती है, तो इससे और बुराइयां पनपती है। एक क्या अच्छे तरीके से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, जो अल्लाह ने हमें ज़बान दी है, क़ुव्वत गोयाई दी है, इसको कहीं और लगाना अगर चाहें तो वो कैसे हम इसमें सरखुरू हो सकते हैं, ये बताएं। बहुत अच्छा आपने पॉइंट उजागर किया है। अक्सर खवातीन में देखा गया है कि सास बहू के झगड़े आपस में, ये सारा जो माहौल खराब हो रहा है, यकीनन ये ग़ीबत का इसके अंदर काफी बहुत ही भयानक रोल अदा हो रहा है।
तो गायबाना में ग़ीबत करते हैं। जब इन खवातीन से नसीहत की जाती है तो खवातीन इतने एडमेंट है अपने इस मौके पर और ग़ीबत की इस तहरीक को, जो खवातीन अगर सबसे बड़ी तहरीक अगर आज चल रही है ग्लोबली आलमी पैमाने पर, तो खवातीन की तहरीक है, ग़ीबत की तहरीक। समझते हैं हमारे लिए हथियार है, इसके जरिए से आसानी के साथ फितने में मुब्तला कर देती हैं, किसी के साथ कभी भी कहते बेड़ा गर्क कर सकती हैं। इतनी बड़ी तहरीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको इस फितने से बचाए, और इसमें मर्द हज़रात भी कुछ कम नहीं है, उनका अंदाज अलग है। खवातीन ज्यादा टॉपिक में आ जाती हैं, तो ऐसे वक्त पर जब इनसे कहा जाता है तो कई खवातीन आर्गुमेंट करते, बहस करते, कहते हैं ये ग़ीबत नहीं, हम तो बुराई बयान कर रही। बुराई बयान करने का मकसद क्या आपका? बस बुराई है, इजाला मकसद नहीं है आपका। बस मकसद रहता है कि बुराई बयान की जाए, उसको बदनाम कर दिया जाए। इसी तरीके से जब उनसे कहा जाता है कि ये है तो कहते हैं नहीं, हम पर जुल्म हुआ है तो आप जुल्म के खात्मे की कोशिश कीजिए। बुराई बयान करके उस फसाद को और तब्दील क्यों करना चाहते हैं? जो एक घर का था उस मसले को खानदान का क्यों बना देते हैं? और चुगलखोरी, ग़ीबत, एक के बाद एक बुराई जन्म लेना शुरू हो जाती है। यहां तक के कत्ल, गारतगिरी, हादसात अगर आप उठाकर देखेंगे उसकी शुरुआत ग़ीबत से होती है। पहले आदमी बदजन होता है, फिर जासूसी करता है, फिर उसके बाद चुगलखोरी, फिर ग़ीबत, फिर उसके बाद गुस्से में आता है, गैरत में आता है, कत्ल, गारतगिरी, जराइम, आखिरी में जेल या फिर कत्ल, खून की नदियां बह जाती है। ये उसका खात्मा है, दुनिया में भी नुकसान, आखिरत में भी नुकसान। शुक्रिया मदनी साहब। नाजरीन, आपके बहुत सारे खतूत हमें मौसूल हुए हैं, लेकिन एक तरफा गुफ्तगू होगी, इन सारे खतूत को हम इस प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकते। आपसे मेरी मुअद्दिबाना इल्तिमास है कि आप हमें SMS रवाना करें, ताकि इसी प्रोग्राम में फिल फौर आपके सवालात का जवाब दे दें। और कई खतूत जो है मौजू से हट कर भी हैं, तो मैं कुछ नाम पढ़ देता हूँ। सफिया मीरा गांव ठाणे से, और जिलानी आनंद गुजरात से, इरफान बुधवान से, शाह हबीब रहमान रायचूर से, और बहुत सारे खतूत इसी तरह से मौसूल हुए हैं जिनके नाम भी गिनवाना शायद हमारे प्रोग्राम में इतना वक्त अभी बाकी नहीं है कि मैं आपको सारे खतूत पढ़कर सुनाऊं या उनके नाम गिनवाऊं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके जो सवालात हैं वो मुख्तसर तौर पर दें और SMS के जरिए दें, ताकि आप अपने जवाबात फिल फौर पा सकें।